Hello, hello. How's the Josh in 2025? Hope you all are enjoying the episodes. Welcome to Niskas with Anushka, where every story matters and every connection counts. Resolutions तो बनाए ही होंगे आप सबने. कैसे चल रहा है मोमेंटम? And we all know कि since January is going to be all about resolutions, तो क्यों ना हमने सोचा इसी टॉपिक पे थोड़ी आज बात कर ली जाए. आज के हमारे गेस्ट को आप सब काफी अच्छे से जानते हैं एंड सिंस यू ऑल लव्ड माय प्रीवियस एपिसोड विद हिम so much, we are here with another one, but आज no nutrition talks. It's only going to be about new year, new me. So Hanji, welcoming Dr. Umesh Wadhwani on Nuskas with Anushka once again. Welcome, doctor. How are you? I am good, very happy because of Yes. brother. A funny story. पापा घर पे गया था ये एंड पापा वाज लाइक कि बेटा मैं ज्वेलर के पास लेके जा रहा हूँ, देखते हैं इसका कितना है. मेरे पापा ये सही का सिल्वर नहीं है ये. Oh But God. thank you so much, Anushka, for having me here again. And I'm looking forward to this conversation because हम आज for a change nutrition के बारे में बात नहीं करेंगे. Yes, and I'm also looking forward to it. So, मतलब because I am not a New Year resolution person at all. इसलिए I'm looking forward to this conversation even more because I have so many doubts around it and जो मैं आपसे आज पूछने वाली हूँ. Sure. So पहले तो आप बताइए how's the New Year going on for you so far, and like what's the resolution that you've made up for yourself for 2025 that you are the most excited about? यार न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं बट we'll talk about them more in detail कि मैंने कैसे उनको break down किया. But one of the most exciting things is I'll be trying my hands on stand-up comedy. So my first stand-up gig is happening on 11th of Jan in the Okay. Habitat in Mumbai. Okay. Are we So are we all invited? I mean, yes, I'll share the Book My Show का link. Sure. So नया artist है, you have to support the artist, right? You know, right? They have a concept called कि वो नए artists बाहर खड़े होते हैं, आ जाओ मेरे शो पे, आ जाओ मेरे शो पे. अब मैं वही तो कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे शो पे, आ जाओ मेरे शो पे. बाहर क्यों खड़ा रहना है जब when I have your platform and your audience, so I'm just doing it. Okay. So that's something which I'm very excited about. Okay. एक साल से मैं मटेरियल लिख रहा हूँ. I have a 45-minute set ready. एंड मैंने उसका 7-8 मिनट बैंगलोर ओपन माइक में ट्राई किया था. ऑडियंस gave me a good response, so I'm excited for that now. Wow, that's something interesting. And so this is like your plan for 2025 अभी. Yes, 2025 का प्लान यही है बिकॉज बहुत मैं पिछले 6-7 साल से इस पे काम कर रहा हूँ कि हाउ आई वांट माय पोस्ट 40 ईयर लाइफ टू लुक लाइक. मुझे हेल्थ केयर में कुछ काम करना है बट आई एम एन एंटरटेनमेंट गीक. मुझे स्टैंड अप फिल्म्स, पॉप कल्चर, ये सब बड़ा पसंद है. तो आई वांटेड टू कंबाइन दीज टू, जो मैं स्पोरेडिकली करता आ रहा हूँ. बट अभी जितना भी स्पोरेडिकली मैंने अलग अलग जगह पे डेटा बनाया, उसको कंपाइल करके मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ. एंड आई एम होपिंग टू बी मोर एंड मोर ऑन स्टेज एंड इन फ्रंट ऑफ पीपल देन behind the camera and doing making reels. So that's my 2025. It doesn't mean content कम होगा, वो हम प्री प्लान करके रखेंगे, but yeah. So why are you planning to go on India's Got Latent also? Yes, but as a judge, not. Oh, that's nice. Yeah, not a. Nice. But yeah, so let's hope that happens as well. मजा आएगा. मुझे Yes. ऐसा लगता है समय के साथ मैं बहुत वाइब करूंगा. So and I'm looking forward to get roasted as well by him, which is fair because I have a few comebacks as well for him. So it will be good. Oh, it's already planned for somewhere then. Absolutely. भाई उसका हर सेंटेंस इज अ जोक, तो यू हैव टू prep for it, no? Totally. What do you think of India's Got Latent? Awesome. I love the show. I know there's nothing great. I mean, कुछ knowledge नहीं मिल रहा उससे, but still, I mean, it's a really good platform to just like when you are like वो ये है ना एक funny चीज हो रही है, आप हंस रहे हो, and
and you're watching some random stuff and you're just still laughing. Absolutely. So I think But that's a good thing. what do you think of the political incorrectness on the show? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए. I think there should be some people. I really respect these people because they are so bindas about their views. And एक comedy के perspective में डाल के, telling it out to people is a good thing. I don't think there's anything bad about it. तो अभी Everybody. अभी ये जो 2 दिन पहले उर्फी का इंसिडेंट हुआ है, what do you have to say about that? Um, Again, like I am not a Urfi Javed fan, so I really have no comments. But what I feel is that यही हुआ था ना, that she was somebody had commented on her. Yeah, she was slut shamed Yeah. basically. So again, like I don't know. I just feel कि if you are doing something and people are going to say about it, so you should have the guts to stand up for it. That's it. And what she did, not giving it back there and just walking off, was a good thing to not start a bigger controversy. So I think that was decent on her part. Okay, fair. Yeah. Cool. I saw a lot of people who are otherwise okay with any kind of jokes, but then when this incident happened, they started talking crass about Samay Raina. He has no boundaries. He roasted Kusha Kapila, and then this and that. तो yeah, I know where they're coming from, but at the same time I feel offense is a very personal thing. हम सबका अलग अलग बाउंड्री होता है. Like तुम बाकी 717 चीजों के बारे में जोक मार लिया तो तुम हंस लोगे, but if something is related to you, you are like no, I'm offended. Right. This is something which I find it weird, Yeah, but I but love the show as well. yeah, but you are again commenting on someone else also. ना, अब जो participants आ रहे हैं, वो भी इतना courage लेके आ रहे हैं stage पे. But you guys are, as judges also, you all are roasting them only ना. Roasting तो them, yeah. personal उन पे भी तो personal हो ही रहे हो, just because you all are celebrity, so people can't talk about you. Talk about Why? yeah. So तो it's an umbrella. I feel के joke is an umbrella. Ricky Gervais do you know Ricky Gervais? He's a British comedian, and I think world के top 5 comics में वो आता रहेगा. He's one of my top 3 best comics में. Ricky Gervais का उसका एक analogy is like के people who get offended, it's like तुम एक टाउन हॉल में गए हो, सोसाइटी लाइक एक सिटी सेंटर है, वहाँ पे गए हो, वहाँ पे एक होर्डिंग लगा हुआ था नोटिस बोर्ड पे कि गिटार लेसन्स अवेलेबल, एंड नीचे नंबर लिखा हुआ है, एंड यू आर कॉलिंग दैट पर्सन अप सेइंग कि तूने ये बोर्ड क्यों लगाया, मुझे गिटार लेसन्स नहीं चाहिए थे, नाउ आई एम ऑफेंडेड. भाई अगर तेरे को नहीं चाहिए तो जस्ट रीड एंड वॉक पास्ट नो बाबा, इट्स नॉट फॉर यू. तो जोक्स आर जस्ट लाइक दैट. Jokes are jokes. No one means anything in that. It's just a different angle of looking at things. But okay, I think we are digressing. We should come back. yeah, let's come back to our topic for today. And by the way, you've already shown your silver plate there, but I just wanted to like tell everybody ki doctor has received recently the silver button of YouTube. And firstly, hearty congratulations on this big achievement. Thank you so much. Yeah. Was this also one of your resolutions for 2024? Yes, it was actually. It actually was. 2024 में हमने जैन में डिसाइड किया था कि 26/11 विच इज़ माई बर्थडे, तब तक हमें सिल्वर बटन चाहिए. वी वर्क फॉर इट एंड वी गॉट इट. या तो Awesome. So I think जो आपने प्लान किया था वो आप you could achieve before the year यस, ended. 6 दिन पहले 20 नवंबर को आ गया. मज़ा ही आ गया था. वी वर सो हैप्पी. Awesome. But मेरे को भी कोशिश करना है, to experience this whole thing because I don't kind of believe in it. So I was thinking कि I should also keep a resolution around this to see how should I increase my subscribers on YouTube. तो Sure. अब मेरी confusion ये है कि मैं इसे resolution बोलूँ या manifestation बोलूँ. How do you think I should go about it? See, there is a difference between resolution and manifestation. Na? Resolution, I feel, it's more action focused, and manifestation is more about visualization and belief. It's like khayali pulao, and resolution is more action focused.
बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन में तुम एक्शन को ऐड करो तो वो भी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, एंड रेजोल्यूशन में तुम बिलीव्स और ख्याली पुलाव ऐड करो तो वो 31 जनवरी तक गुम हो सकता है. सो पीपल आर काइंड ऑफ मिक्सिंग इट अप. बट दिस द मेन डिफरेंस ना. मैनिफेस्टेशन इज के आई एम मैनिफेस्टिंग दिस ईयर के मेरे स्किन में एक्नी जो हो रहा है वो चला जाए. बट Didi, hello, you have to start drinking good water, you have to stop smoking, sleep well. If there is an infection, you have to get it treated, go and check them. तो ये सारे steps होते हैं. तो you can't just vision board पे लिख दिया clear skin and अपने आप clear skin नहीं आएगी. You have to act on it as well. And I think a lot of people resolution में भी वही करते हैं. They set a target कि अगले साल से दारू बंद. But what? Do you know the steps? क्या करना है? So that's where the major difference is, and there are a lot of reasons why people cannot stick to resolutions. So अगर जो आपने भी बोला उसमें if I ask you for example weight loss के ऊपर, so I want to lose, one statement is I want to lose 10 kgs by 2020 end of 2025, and the second statement is I want to lead a fit and healthy lifestyle. So which of the two is a resolution? Oh, interesting. See, you want to lead a fit and healthy life is it can't be a resolution because you are talking about life. है ना. रेजोल्यूशन को बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन इन इटसेल्फ इट मींस कि 2025 का रेजोल्यूशन तुमने ऑलरेडी बाउंड्री लगा दिया. व्हेन यू से लाइफ देन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ लॉन्ग थिंग. तो जो 10 kg कम करने का गोल है दैट कुड बी अ रेजोल्यूशन in these two statements. Okay, I had a different perspective. I thought ki resolution is always the end goal, whereas or end outcome, whereas the action, like losing 10 kgs, is my action for living a fit and healthy lifestyle. That is my goal to achieve that resolution. So Okay. this is what is my concept. I don't know if I'm right, but this is what I have always thought पर about. अनुष्का, इफ यू लुक एट इट लाइक हम कोई भी चीज को रेजोल्यूशन और गोल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द थिंग दैट यू सेड कि इट्स अ गोल. फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इज कि मुझे अगले साल 10 किलो कम करने हैं, राइट. दैट्स इट कैन बी अ रेजोल्यूशन एज वेल बिकॉज 10 किलो कम करना इज नॉट ऑन ओवरनाइट और वन स्टेप. उसके अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीजें. Okay. ठीक है. तो एज अ कोच मैं हमेशा बोलूंगा जो दूसरा स्टेटमेंट था लिविंग अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, इफ यू एड दैट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस you'll be able to achieve losing 10 kg. It's not the other way around. Okay. Losing 10 kg will not give you fit and healthy life. Once you start living a fit and healthy life, that's where the weight loss will be a byproduct. Okay. ठीक है, I got it. तो इस पे do you believe कि resolution should focus like more on small incremental changes or big Absolutely. transformative goals? Absolutely big. Yeah. Okay. So you know Gary Vee. Yes. सो गैरी वी का एक प्रिंसिपल बहुत साल पहले, आई थिंक जब उसने कंटेंट बनाना शुरू किया था, 14-15 की बात है उसकी, 2014, तब उसने ये कॉन्सेप्ट कोई तो वीडियो में बोला था. एंड देन आई हैव लाइक लिटरली मैं गोल के पी गया हूँ दैट कॉन्सेप्ट. एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड माइक्रो स्पीड मैक्रो पेशेंस. Okay. So let's say I want to have six pack abs. That's my goal. For that my patience is big. Macro patience, मुझे पता है कि it will take me 6-8 months or a year. बट वहां तक पहुंचने के लिए मुझे जो स्टेप्स करने हैं वो मुझे डेली बेसिस पे जल्दी जल्दी करने हैं. सो आई कांट बी लाइक कि मुझे एक साल के बाद एब्स लाने हैं तो उसके लिए मुझे कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा. तो कैलोरी डेफिसिट में आते आते मैं 4 महीने ले लूंगा ना. इट कांट वर्क. आई हैव टू बी क्विक ऑन दैट. आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट. आई हैव टू बी इन अ डेफिसिट. आई हैव टू स्लीप राइट वगैरह वगैरह. ये जो छोटे छोटे चेंजेस है उसके लिए मुझे स्पीड दिखानी पड़ेगी. बट गोल के लिए मुझे पेशेंस होना पड़ेगा. This is where a lot of people go wrong because न्यू ईयर रेजोल्यूशन कॉमनली क्या होते हैं. लाइक what are your resolutions, if you were to say? I'm not a resolution person. You're not a resolution person. I don't What have resolutions have you heard people say? having clear skin, losing weight,
start reading kind of if they are not. And और क्या होता है, like work professional fronts पे भी काफी होते हैं लोगों के, have to Yeah. achieve this particular thing, so all of या that. देन फैमिली को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है, Hmm. बच्चे को स्कूटर दिलाना है, या वगैरह वगैरह जो भी है. नाउ वन प्रॉब्लम इज सब लोगों को सब कुछ एक साथ करना है. सो वी पुट a lot of responsibility on the poor January month. A Yeah. lot of response. सब कुछ हमें जनवरी में शुरू करना है एंड मार्च तक हमें सब अचीव भी कर लेना है. We are confusing process with the outcome. Your resolution should be setting up the process. Outcome will take time. But जितना जल्दी तुम प्रोसेस सेट करोगे उतना जल्दी तुम आउटकम पे पहुंच पाओगे. इफ यू फोकस ऑन आउटकम एंड से कि मेरे को ये आउटकम अचीव करना है, देन यू आर मोर लाइकली टू गेट डिमोटिवेटेड. Okay. Yeah, we'll talk about certain examples, right? So for example, weight loss पे ही बात करते हैं वापस से. weight loss, right? तो no one has gotten overweight overnight. ठीक है. Your weight was 50 kg at the age of 17, let's say. Yeah. then you started. हमारे खाने पीने की आदतें उस टाइम पे थोड़ी ऐसे सीमेंट होती हैं. हम 7-8 साल से हमारी प्रेफरेंसेस शुरू होती हैं और 17-18 तक सीमेंट हो जाती है सारी आदतें. उसके बाद चेंजेस लाना इज वेरी डिफिकल्ट. जो भी चेंजेस है तो हमारी आदतें वो सीमेंट होगी. उसके बाद तुमने वो आदतें फॉलो की ओवर अ फ्यू ईयर्स आपका वजन 70, 80, 90, 100 जो भी पहुंचा है, राइट? एंड नाउ यू आर एट द एज ऑफ 33, 35 एंड यू आर लाइक 95 kg. तुम्हारे पीरियड से रेगुलर हो रखे हैं, बाल सही से लाइक बाल झड़ रहे हैं, स्किन इज नॉट गुड वगैरह वगैरह, अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स. ठीक है. एंड यू हैव बीन ईटिंग अ सर्टेन वे और यू हैड सर्टेन हैबिट्स फॉर 17, 18 years. You are expecting all of these to change in a month or two. Because if weight gain was an outcome of your habits over 17, 18 years, then weight loss as an outcome will take some amount of time. Now it can't happen in 17, 18 days. And वेट गेन जैसे ओवरनाइट नहीं हुआ था, ऐसे वेट लॉस ओवरनाइट नहीं होगा. दैट्स नॉट योर गोल. योर गोल इज कि जो भी आदतों की वजह से आपका वजन बढ़ा था वही आदतें हमें फ्लिप करनी है, और वो जितना जल्दी हम फ्लिप करेंगे उतना जल्दी हमारा आउटकम अचीव होगा. एंड नाउ दैट हैपेंस विद एवरीथिंग. कि तुम्हें पैसे लाइक सेविंग्स अकाउंट, बहुत सारे यंगस्टर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेस. नो वन लाइक हम एंड टू एंड ही जी रहे होते हैं. मंथ है ना, मंथ खत्म हुआ, अभी इस टाइम पे 500 रुपए, 1000 रुपए अकाउंट में पड़े हुए बहुत सारे कि अभी न्यू ईयर का क्या करेंगे वगैरह. इफ यू आर इन दैट स्टेज, मतलब तुमने सेविंग्स पे काम नहीं लगाया. अभी सेविंग्स पे काम लगाना है तो यू कांट बी लाइक मेरे को मार्च तक 1 करोड़ रुपए सेव करने. यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग and then the compounding will happen, right? So yeah, these are my initial thoughts on it. So basically it's about focusing on the process, and end goal तो हो ही जाएगा achieve. Outcome is a byproduct of it. We can't focus It's on like a the parallel outcome. thing. Yes. Okay, cool. About the silver button also, like you were saying कि मेरा goal था and I achieved it in the same year. Sure. So that is like a resolution for you. But I have seen many people talk about their resolutions कि अब जैसे for example Jan में December से चालू हो गए reels देखने कि ये मेरा resolution है, वो है. But why are you not posting what you've achieved in the same year? Why is the cycle not getting completed? Is it because people are not able to achieve it? Or is it just because of the peer pressure that they are putting all of these reels? What do you think? एब्सोल्युटली. सी सोशल मीडिया में पहले तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ फोमो होती हैं कि ये 100 कंटेंट क्रिएटर्स का सर्कल है, उसमें से 90 लोगों ने ये चीज़ की है तो मुझे भी करना है, या 50 लोगों ने किया तो मुझे भी करना है, राइट? सो दे विल डू दैट. आई डिड द सिमिलर थिंग इन 2022 जैन में कि मैं ये साल में ये करना चाहता हूँ. दिसंबर में मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाया तो आई कॉल्ड माई सेल्फ आउट कि मैं नहीं कर पाया. एंड देन आई वाज लाइक इट्स अ बुलशिट थिंग टू डू. यू कांट. Instead, write it down on a paper for you, and then if you achieve it, then share, or make sure you
achieve it, because one of the this can be a very beneficial thing as well when you announce it in your community. Then a peer pressure भी आ जाता है एक. Hmm. So for example, मुझे अगर वेट लॉस करना है और मेरा सर्कल इस सच के वो लोग मुझे ताने मार मार के जीने नहीं देंगे, तो मैं अनाउंस ही कर दूंगा कि मैं अभी शराब नहीं पीने वाला, मैं सुट्टा नहीं मारने वाला, मैं जंक नहीं खाने वाला, तुम लोगों के साथ हैंग आउट नहीं करूंगा, बिकॉज मार्च तक मुझे इतना वजन कम करना है. Hmm. और अगर मैंने नहीं किया तो मुझे पता है कि मेरा सोशली कितना ऐसे इज्जत जाने वाली है मेरे सर्कल के अंदर. सो इट कैन बी हेल्पफुल, but I feel it's not working on social media for a lot of creators because public memory is very transient. Exactly. No one calls no one out फिर उस पे. Yeah. No, but yeah, again, even if I feel you're not able to achieve, तो बोलो ना दिसंबर में कि ये गोल था, ये नहीं अचीव कर पाए नहीं कर because पाया. this reasons, but I'm looking forward to 2025. What is the Yeah. like? There's no harm in that. It's So true. yeah, it's like an accountability for your audience also कि आप कुछ बोल रहे हो तो you're supporting it with results as True. well. True. What's your take on New Year, New Me? Do you feel it's empowering or overrated? Huh. I think it can be both, but yeah, don't you think we are new every year anyway? Like your identity and your character is evolving throughout. तुम्हारे beliefs थोड़े थोड़े update होते रहते हैं. You have other question in mind? No, I'm just saying, हाँ. but why? Like, it won't change from 31st December 11:59 से लेके 1st Jan 12 o'clock. Okay, I'll tell you. I have a theory here. See, Yeah. time is a human-made concept, right? तो ये घड़ियां हैं जो 12 घंटे 24 घंटे साल महीना सब चल रहा है हमारा. तो हम वो विद इन द बाउंड्री वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ आवर बिलीव्स एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स इन आवर हेड. तो मुझे ऐसा लगता है कि वी एसोसिएट एंडिंग ऑफ समथिंग विद एंडिंग ऑफ समथिंग एल्स, और बिगिनिंग ऑफ समथिंग विद बिगिनिंग ऑफ समथिंग एल्स. तो ये जो रेजोल्यूशन पार्ट है वो पूरा साल भी चलता रहता है. एंड इट कैन बी माइक्रो टू मैक्रो. सो बहुत बार ऐसा होता है कि इफ यू आर हैविंग ए शिट डे, यू आर लाइक यार ये आज का दिन ही बुरा है, कल से देयर विल बी अ बिग फ्रेश स्टार्ट. सो दैट्स योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन माइक्रो में. देन लॉट ऑफ टाइम तुम्हारा मिड वीक लाइक ट्यूसडे वेंसडे तक यू आर हैविंग अ शिटी डे एंड यू आर लाइक मंडे से सब ठीक हो जाएगा. सो वीकेंड यू टेक अ चिल एंड यू Yeah. बिगिन द मंडे. मंथ में भी सेम होता है एंड इट पीक्स इन द ईयर. एंड हमें ऐसा लगता है कि ये साल ही हमारे लिए बुरा था और जो भी चीजें मेरी लाइफ में गलत जा रही थी, आई ट्राई टू करेक्ट देम बिकॉज इट्स अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर. तो आई थिंक इट्स द टाइम का कॉन्स्ट्रक्ट हमने क्रिएट किया है, उसके उसके दायरे में दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. And do you also believe in astrology? आई डोंट. या तो फिर आपका इस पे क्या व्यू है कि when these astrologers say कि 2025 is going to be like the year of manifestation, it's going to fulfill it's going to be a year of fulfillment for everybody. So does this give a positive push for people who make resolutions? Like, do you feel एब्सोल्युटली. मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी एंड होम्योपैथी दे बोथ आर द सेम. They both work on placebo effect mainly. So because if you notice, कोई भी एस्ट्रोलॉजर तुम्हें गलत वो नेगेटिव नहीं देता कि 2025 में तुम्हारी लगने वाली है. मोस्टली हर कोई नहीं बोलेगा? हाँ हर तुम ऐसे वो साइंस का जो राशिफल या जो भी होता है Yeah. उस पे भी सब कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है. विदेश जाने का योग, एक सुंदर व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात होगी, वगैरह वगैरह वगैरह. तो सब एवरीथिंग इज पॉजिटिव. नो वन इज सेइंग कि तुम्हारा बिटकॉइन का रेट कम हो जाएगा या तुम्हारा इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो जाएगा. ऐसा कोई तो कुछ बोलता नहीं है. So but if you are going through a shit time and if you talk to someone and if they say some relatable yet very personal thing to you, it could be very generic. Okay, I feel you are a very kind hearted person, Anushka. I am. And see even if you are not, you will be like, oh, they'll be like, हाँ जान दो, ये मेरी तारीफ ही कर रहा है ना. So say but I'm sure there is some science.
ठीक है, I think it's just a matter of motivation, and if you wanna take it positively, why not? मुझे और मुझे वही लगता है. See again, this applies to a lot of religious beliefs as well. This applies to astrology as well. कि हुँ, यार, if if it is giving you an anchor, वो हुँ, होता है ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही काफी है. So if it is that तिनका for you, why not? But राइट, on the basis of that, if you are making people fool, and if people are taking this non-evidence based practices and making huge life decisions, और वो communities के बीच में बहुत issues create हो रहा है या वगैरह वगैरह, like you know, if society at large पे कुछ नुकसान हो रहा है ये beliefs की वजह से, then that should be called out. But अगर एक मंगल की रिंग पहनने से आपको बूस्ट मिल रहा है थ्रू दैट प्लेसिबो इफेक्ट, बी माई गेस्ट, डू दैट. राइट. I've always thought this one thing कि जैसे अब जब जो लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ईटिंग हेल्दी या फिर so it's basically you don't like to do these things, and that's why you're kind of like, because you're not eating healthy, you are making a resolution कि अब मैं healthy खाऊंगा या weight lose करूंगा, because you know that you're not able to lose it. तो ये जो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका ही क्यों हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, रादर देन व्हाई नॉट मेकिंग अ रेजोल्यूशन दैट यू लव डूइंग सो दैट यू आर एबल टू फुलफिल इट, और यू आर एबल टू अचीव इट थ्रू आउट द ईयर. Okay, so I think ये हेल्दी ईटिंग की जब बात आई, सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल know they should be doing, but they are not doing it, and it's causing some sort of harm in their personal health wise or social wise or financial wise. कहीं ना कहीं उनको negative impact दे रहा है. हम्म. Those are the things that they want to change, right? I give this I give this very silly analogy again कि if you have a phone or a Mac जिसमें सब कुछ मस्त में चल रहा है, बट एक स्पेस बार नहीं चल रहा है, तो तुम्हारा दिमाग बार बार स्पेस बार पे जाएगा. यू वॉन्ट बी लाइक कि कितना बढ़िया रेटिना डिस्प्ले है या कैमरा कितना अच्छा चल रहा है, बट जो नहीं चल रहा है उस पर यू विल फोकस. तो आई थिंक रेजोल्यूशंस आर मोर अबाउट बेटरिंग योर सेल्फ एट लार्ज. जो चीज़ें चल रही हैं उसको इम्प्रूव करने पे कोई काम नहीं करता है, विच दे शुड. लाइक इन माई कोचिंग आई ऑलवेज टेल पीपल द सेम थिंग, and that can give you a mental boost, yeah, like if you are working on improving certain things. And rahi baat, not liking something, yeah, there are certain things which are non-negotiable for us, right? For example, brushing your teeth, or um, sleeping on a regular time and get 6 to 9 hours of sleep, or eating healthy. These are non-negotiables. If you choose to not do it, you have to face the repercussions, है ना. You won't be able to go to a date if you don't brush your teeth. If you will have a lot of health issues if you're not eating right, वगैरह वगैरह, right? So uh, what I always preach or practice as well कि यार जो भी चीजें तुम्हें नहीं पसंद है उनको लाइकेबल बनाओ. खाना तो सब खा रहे हैं ना, हम्म. है ना. तो जो चीज तुम कर रहे हो उसको तुम enjoyable बना सकते हो, बट there is a huge assumption और notion in people's head के healthy eating is always boring, and जो junk food होता है वही मजेदार होता है. but it's not the case. like हम्म. फ्राइज के अंदर तुम नमक मत डालो तो इतना मजा नहीं आएगा खाने में. हम्म. भजिए, like there is a reason why those flavors, those junk foods are palatable for us. तो राइट. वही चीज तुम हेल्दी फूड के साथ भी कर सकते हो, उनको तुम पैलेटेबल बना सकते हो, बट नो वन वांट्स टू लर्न दैट. यू कैन. हम्म. तो do you have any nuskas for people who struggle to maintain their new year resolutions? Yes, I do. We can talk about the, yeah, a lot of them. Nuskas would be, I think, first of all, uh, set a date, हम्म. and it can't be 31st January. It depends कि तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें स्मोकिंग क्विट करना है ना अगले साल, तो तुम्हें डेट डिसाइड करना पड़ेगा कि कब से कब तक. हम्म. सन, अदरवाइज योर ब्रेन विल बी इन द डार्क. तुम्हारे ब्रेन को जब तक तुम शेड्यूल और स्पेसिफिक चीजें नहीं बताओगे वो वॉन्डर ऑफ करता रहेगा.
टेक अ ईयर इफ यू वांट टू, लाइक से 31 दिसंबर 2025 तक मैं क्विट करूंगा, इट्स ओके, बट योर ब्रेन शुड नो कि तब का टाइम है, एंड कब से तुम शुरू कर रहे हो एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इट और वर्किंग ऑन इट, दैट्स वन. ठीक है. टू, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग टाइनियर स्टेप्स टूवर्ड्स दैट रेजोल्यूशन. टाइनियर स्टेप्स. Point in case smoking, um, you have to start telling people कि I have quit smoking. यहाँ पे लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है बाय द वे. सो हम अगर सोशल गैदरिंग में इकट्ठा हुए हैं एंड तू भी स्मोक करती है, मैं भी स्मोक करता हूँ, यू आर ऑफरिंग के उमेश लेट्स गो, आई लाइक यार नहीं अनुष्का, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग. योर ब्रेन इज वेरी उस्ताद. योर ब्रेन इज लाइक कि ये ट्राई कर रहा है अभी भी, देयर इज अ स्कोप. तो तू 2 बार पूछेगी ना, मैं बोलूँगा चलो चलते हैं. बट इफ आई टोल्ड यू के आई हैव स्टॉप्ड स्मोकिंग, my brain is like इसने बाउंड्री क्रिएट कर लिया है. So in that particular occasion, I'm more likely to not smoke. So you have to take tiny steps towards it. 3, we have to create an environment which is supportive of this goal. तुम्हें दारू छोड़नी है और तुम्हारे घर के किचन के हर कबर्ड के अंदर विस्की का बॉटल रखा हुआ है, इट्स नॉट अ सपोर्टिव एनवायरमेंट. राइट. And same applies to junk, like if you have sugar binge eating का problem and तुमने किचन में ही सुपरमार्केट खोल के रखा है, doesn't help. स्मोकर्स के साथ हैंग आउट करोगे और तुम्हें स्मोकिंग क्विट करना है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो यू हैव टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरमेंट. योर एनवायरमेंट सपोर्ट बहुत जरूरी है. दीज आर द 3 things which are major. But then depending upon what goal you are working on or what resolution you are working on, work with a professional बाबा. स्पेशली हेल्थ में ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को खुद का डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है. या तो गूगल को डॉक्टर बनाएंगे और गूगल नहीं तो खुद अपना डॉक्टर बनने बैठेंगे. यार एक बार प्रोफेशनल की सलाह ले लो ना. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, गेट हेल्प, learn the skill of whatever you want to change in your life, and then be self dependent on it. So get professional help. And then then फिर specific problems आते हैं, then we'll talk about the specific problem के solution. But these are the 4 major things. Set a date, move towards that in the direction, tinier steps, create an environment and get professional help. खुद के डॉक्टर मत बनो. I think for me that resonates कि create a good environment because वो important है, तो आपका mindset भी वैसे ही चलता है. You don't see Absolutely. things and it's easier to maintain. Yep. तो आपने you've told about your 2025 का resolution कि you want to get into comedy. Were there any such unconventional or creative resolutions that you set for yourself in the past, which you could achieve or not achieve, but they were like really creative? I mean, I wanted to get into regional content, which I already have. I still want to get bigger on that. That's for sure. तो Okay. वो रोल ओवर होगा अगले साल में. So we'll be starting Gujarati and Punjabi page in Okay. coming year. So that's gonna happen. Unconventional. I wanted to do something more for global warming, climate change, environment, some which I couldn't. Okay. Because I'm yet to come out of closet in that. If there's a better analogy, I don't know, but I'm not entirely sure what should I be doing to help climate better. I'm on the fence at the moment कि क्या सही है, because there are debates everywhere. I was watching a podcast of a PhD doctor who does a lot of research on plastic and recycling वगैरह. तो मुझे पूरा अलग साइड पता चला कि why plastic is actually helping the environment, not harming, which was crazy. So I'm still on the fence, but that was something which I couldn't. Uh, one thing which I am working on for last 2 years is I want to open a dog shelter. तो होपफुली अगले साल वो हो जाए. That's nice. Hmm. Lovely. Those are some nice resolutions that you've talked about. What do you have to say about the guilt of these last year resolutions impacting इस साल का resolution? इंटरेस्टिंग. ओके. इसके जवाब ये है,
कि आई वॉन्ट एवरी वन टू बी काइंडर टू देमसेल्व्स. ठीक है. सी, हम है ना, अभी हमारी लाइफ में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से जो हमारा हमसे बेस्ट बन पा रहा है ना वो हम कर रहे हैं. नो वन वॉन्ट्स टू जैब अ कुलाड़ी इन देयर ओन पैर ऑन अ डेली बेसिस. तुम्हें अगर दारू की आदत छोड़नी है और रोज रात को वो जानने के बावजूद कि दारू इज कॉजिंग माई हेल्थ अ लॉट ऑफ इश्यूज, उसके बावजूद अगर तुम्हारी बॉटल खुल रही है और तुम फॉर सम रीजन हेल्प नहीं ले पा रहे हो, इट्स ओके, बिकॉज दैट्स नॉट डिफाइनिंग you as a person. There are so many other things you are doing. You you could be a father of two, managing a family of five. You have a lot of loan on mortgage to pay. Your work has a lot of stress. तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड उसके बाद इट बिकम्स वेरी टैक्सिंग फॉर यू टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ. आई नो आपको शायद पता है कि लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल है. अगर मैं मेरी हेल्थ अभी फिक्स कर लूंगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्प होगा, बट वो लॉजिकल डिसीजन पे तुम अभी स्टेप नहीं ले पा रहे हो. बट इट्स ओके as long as you are having back and forth conversation with yourself. If you are a if you are a housewife managing a joint family of 8 people, किचन भी संभालना है, बच्चों का खाना भी बनाना है, पतिदेव का खाना भी बना के उनको वहाँ काम पे भेजना है, तुम खुद से अपना खाना नहीं खा सकते बिकॉज सास ससुर बुरा मान जाएंगे, पति के वेट करना पड़ता है रात को, वो डिनर के लिए आएगा, उसके बाद तुम डिनर करोगे. सो यू आर गोइंग थ्रू इट्स. सो इट्स ओके इफ यू हैव थायराइड एंड यू आर नॉट लुकिंग आउट ऑफ आफ्टर, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर ऑब्लिगेशंस ऑन योर हेड. तो मेरा ऐसा कहना है कि इट्स ओके, लास्ट ईयर नहीं हुआ, इस साल एक और थोड़ा सा एक स्टेप आगे लो एंड देखो कि जो भी मैंने चीज़ें बोली उनमें से जो जो भी प्रॉब्लम है उनको पेन डाउन करो. जो चीज़ें अनकंट्रोलेबल नहीं है उनको साइड पे रखो, जो चीज़ें कंट्रोलेबल है उनको तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो क्या, देखो what you can do. Because one particular habit or a goal or a condition cannot define you as a human being, and if you clear this in your head you will feel less and less guilty. बहुत बार हम ये छोटी छोटी चीज़ों का हमारा आइडेंटिटी और हमारी पूरी लाइफ बना लेते हैं. दिस अप्लाइज टू हेल्थ अ लॉट. A lot of people when they try doing anything with their health and changing anything, उनका बाकी की चीज़ें मस्त चल रहा है. Like I know someone who is building a huge startup in Dubai. She has worked so hard. उसका ऐप और वगैरह तू देखेगा ना अनुष्का, you will be like created such beautiful thing and you are putting heart and soul into it. But वो कभी एक बार वियतनामीज कॉफी पी लिया शुगर वाला तो उसको गिल्ट ट्रिप होता है भाई साहब कि मैंने मेरे साथ क्या कर लिया. यू डोंट हैव टू. बाकी का दिन तो देख तूने क्या अचीव किया है बाबा. तो आई थिंक people should every night look at themselves in the mirror and give themselves शाबाशी कि ब्रो मस्त दिन रहा आज, कल और बेहतर करने की ट्राई करेंगे. अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, परसों कर लेंगे. राइट. अब वो है ना, इफ यू कीप, अगर पहले नहीं कुछ अचीव हुआ है गोल्स, नेक्स्ट ईयर का आप बना रहे हो रेजोल्यूशन, तो प्रॉब्ली कीप अ वेरी स्मॉलर रेजोल्यूशंस प्रॉब्ली जो अचीवेबल है, सो दैट वो गिल्ट और आगे ना बढ़े. या इट्स ओके. बट या in a nutshell, be kinder to yourself and छोटे छोटे steps. Yeah. But lot of people, will take this as an excuse also कि and that is not good कि दूसरों के वजह से मैं नहीं कर पाई. Like you said, you gave few examples of the family and the family members कि ये होता है वो होता है तो उसकी वजह से मैं मेरे थायराइड का I couldn't take care of it. So that is an excuse. See, it could be an excuse and it could be a genuine reason. I'm saying कि identify it for yourself. अगर तुम झूठ बोल रहे हो, use it as an excuse, then you have to face the repercussions. तो eventually अगर तुम्हें repercussion से बाहर निकलना है तो तुम्हें changes लाने पड़ेंगे. And that's where a very important point comes in. जब तक तुम तुम्हारा वाई आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आई नो दिस इज वेरी मोटिवेशनल संदीप माहेश्वरी टाइप ऑफ अप्रोच, बट जब तक तुम वो नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला. लाइक आई कैन से दिस थिंग्स इन सो मेनी डिफरेंट वेज, बट इट इज इवेंचुअली वही है. जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो. इफ यू वांट टू लूज वेट एंड इफ यू वांट टू लूज इट बिकॉज तुम्हें फोटोज में अच्छा दिखना है, तो दैट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ वाई. यू आर नेवर गोइंग टू अचीव योर वेट लॉस. ठीक है. इफ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग बिकॉज अक्षय कुमार का एड देख के तुम मोटिवेट हो गए, वो तो अभी आ भी नहीं रहा एड, बट
तो तुम कभी भी स्मोकिंग क्विट नहीं करोगे. इट हैज टू बी वेरी कोर, लाइक इट हैज टू, वो तुम्हारे लिटरली एमिगडाला में जाके हिट करना चाहिए. एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो तुम्हारे फियर से एसोसिएटेड है. वो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. तुम्हारा सर्वाइवल वहां से किक इन होता है, राइट? तो जब तक तुम्हारा एमिगडाला पे जाके ऐसे हिट नहीं करेगा ना कि शिट, अब मैं 40 का हो गया, मेरे 2 बच्चे भी हैं, और इफ आई फॉल इल, इफ आई हैव अ हार्ट अटैक, इफ आई हैव कैंसर, इफ आई गेट वेरी इल और लाइफ थ्रेटनिंग कुछ आ गया तो उनका क्या होगा? या आई लव माई वाइफ सो मच दैट आई कांट गिव her दिस लाइफ, और दी अदर वे अराउंड. लाइक जब तक तुम्हारा वो, और इफ यू आर अ एम्बिशियस पर्सन, लाइक यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट टू बी, लाइक आईपीओ अपना लगवाना है, या यू वांट टू बी अ यूनिकॉर्न, तुम्हारी कंपनी को लेके जाना है, एंड यू आर सो एम्बिशियस, this is the machine that you would be doing it with. Like not everyone is as privileged as Stephen Hawking. So Right. we'll cut that. Okay, cool. How do you think setting resolutions would impact on mental health and like overall productivity of a person? I think प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो मेंटल हेल्थ अपने आप बेहतर होने वाला है, फॉर श्योर. इफ यू नोटिस, हम वही वाले रेजोल्यूशंस करते हैं जो हमने पहले भी बोला, कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में सही नहीं जा रही, एंड हाँ. हमारा मेंटल हेल्थ क्यों कॉम्प्रोमाइज होता है? या तो काम पे कुछ तो इश्यू चल रहा है, रिलेशनशिप में कुछ तो इश्यू चल रहा है, या तो हेल्थ में कुछ इश्यू चल रहा है, फाइनेंसिस में, या घर पे. ये 4-5 ही हमारे प्रायोरिटी पॉइंट्स होते हैं, राइट? तो जो चीज़ में तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है, अगर उस पर तुम सही से काम करना शुरू किए, जैसे हमने बात किया, स्मॉल स्टडी स्टेप्स, 1 स्टेप एट अ टाइम, तो रेजोल्यूशंस, तुम्हारा गोल अचीव करोगे, जो प्रॉब्लम चल रहा है या जो तुम्हारी लाइफ में गैप्स हैं वो फिल होंगे, एंड यू आर गोइंग टू फील बेटर. बट मेंटल हेल्थ, अगेन, इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर इंटरनल सिस्टम्स एज वेल. अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में सब कुछ चंगा सी, बट मेंटल हेल्थ फिर भी शिट होता है बहुत सारे लोगों का, तो वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम भी आता है. तुम अगर सही से खाना नहीं खा रहे हो और नींद सही से नहीं ले रहे हो, बट इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू वही सर्कल में हम बात कर रहे हैं. तो when you change things for good or better, you are going to feel better. तो mental health के लिए तो बहुत. Okay. So, matlab, what should be the right mindset or right way to enter in a new year? राइट माइंडसेट शुड बी कि जो भी तुम गोल अचीव करने का प्लान कर रहे हो, उसमें प्रोसेस एंड सिस्टम और प्रोसेस एंड आउटकम को सेपरेट करो, एंड प्रोसेस में जो जो भी गैप्स हैं उसको फिल करने की ट्राई करो, 1 गैप एट अ टाइम. एंड फॉर वंस एंड ऑल, इसको टेम्पररी देखना बंद करना पड़ेगा. सो दिस ईयर कुड बी द लास्ट ईयर वेर यू आर सेटिंग अ रेजोल्यूशन. जो भी चीजें तुम्हें चेंज करनी है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट अ सेकंड नेचर ऑफ सॉर्ट. कि मुझे अगर हेल्दी ईटिंग करना है, तो नाउ आई विल फिगर आउट अ वे सो दैट आई कैन ईट हेल्दी थ्रू आउट माई लाइफ. If I want to learn guitar this year, तो I'll try doing something कि वो मेरे schedule का part बन जाए, कि हर हफ्ते ट्यूसडे एंड थर्सडे शाम को 6:30 बजे मैं गिटार के लिए बैठूंगा. Right. Something along that line. So we have to start thinking longevity, or sustainable approach towards it, than a temporary one. Right. Like make it up included Yeah, in your daily included. routine. So Absolutely. it becomes a part, it becomes a habit. So it's easier. Yes. Hmm. On this note, let's do a rapid fire. So I'm going Sure. to ask you certain things and just like whatever, give your answers for it. Cool. So give me 3 hacks to start eating healthy from tomorrow. ओह नाइस. ओके. पहले तो हेल्दी ईटिंग को हेल्दी ईटिंग की तरह देखो, अवॉइडिंग पे इतना फोकस मत करो. फाइंड आउट कि तुम्हारी बॉडी को क्या क्या चाहिए और वो खाना शुरू करना है. हम अटक के रह जाते हैं कि मीठा नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना. खा लो कभी कभार, बट फोकस ऑन दिस. दैट्स 1. 2, एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके अपने खाने में जो गैप्स हैं वो एक बार आइडेंटिफाई करो और उसको फिल करने की ट्राई करो. 3. एंड 3, 80-20 प्रिंसिपल. आपको हेल्दी खाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है.
you you keep the favorite things to 20%, essentials को 80% रखो, एंड बोनस ये 80% को भी तुम तुम्हारा फेवरेट बना सकते हो इफ यू वांट टू. इट्स वेरी इजी. सो दीज आर द थ्री अप्रोचेस दैट आई वुड से. Nice. 3 hacks to start working out from tomorrow. फर्स्ट, फाइंड योर मोजो. वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जिम जाके बड़े बड़े वेट उठाने पड़ेंगे, फैंसी कपड़े पहनने पड़ेंगे, फैंसी जिम जाना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं. फिटनेस को, वर्कआउट को मूवमेंट वर्ड से रिप्लेस करो. इफ़ यू लाइक वॉकिंग, गो फॉर अ वॉक, पुट स्टैंड अप, पॉडकास्ट, कुछ भी म्यूजिक व्यूजिक लगा के निकल लो वॉक पे. अगर जॉगिंग अच्छा लगा है तो जॉगिंग करो, साइकिलिंग अच्छा लगा. फाइंड योर मोजो. कुत्ता है, कुत्ते को वॉक पे लेके जाओ. बच्चे हैं घर पे तो बच्चों के साथ खेल लो. डांस अच्छा लगता है डांस करो. डांस अच्छा लगता है पर डांस नहीं आता है तो रूम बंद करो, म्यूजिक लगाओ. किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है. डांस योर हार्ट आउट, जंप अराउंड द हाउस, बट फाइंड योर मोजो. दैट्स वन. टू, डिसाइड प्लेस एंड टाइम. जब तक रात को तुम्हें पता नहीं है कि तुम कल कितने बजे वो तुम्हारा उछल कूद करने वाले हो, तुम नहीं करने वाले हो, तो तुम्हारे घर में एक कोना पकड़ो कि ये मेरा वर्कआउट स्पॉट है और वहां पे मैं वर्कआउट करूंगी और कितने बजे करूंगी. तो बाकी कोई भी इंसान आपको बोलेगा कि चलो अनुष्का जाते हैं, हाउस पार्टी है घूमने शाम को, नहीं, मेरा वर्कआउट टाइम है, मैंने फिक्स किया हुआ है. सो कंटिन्यूइंग विद दैट, द थर्ड टिप वुड बी start your day with working out. I'm not saying कि working out in the evening is bad for you. You can work out. नहीं वर्कआउट से कोई भी टाइम वर्कआउट इज गुड, बट वर्कआउट इन द मॉर्निंग, दैट टाइम शुड बी इन द मॉर्निंग बिकॉज तुम्हारा दिन अभी शुरू नहीं हुआ है. अगर तुम दिन में, दोपहर में, शाम को कभी भी वर्कआउट प्लान कर रहे हो तो दैट वर्कआउट विल डिपेंड अपन हाउ योर डे हैज गॉन. घर पे कुछ फड्डा हुआ, काम पे कैसा हुआ, दोस्त ने बुला लिया, बर्थडे सेलिब्रेशन, टिमका फलाना, उसके हिसाब से वो मॉडिफाई हो सकता है. सुबह सुबह उठ के ही वर्कआउट कर लिया, किसी का दिन शुरू ही नहीं हुआ है, you are more likely to stay consistent with your workout. A bonus would be find a partner, because अगर तुम अकाउंटेबल है कोई, लाइक रोज आके दरवाजा कोई खटखटा रहा है, अनुष्का चलो वर्कआउट, या वाइस वर्सा, तू दोस्त के वहां चली गई, चलो उमेश वर्कआउट, यू कैन यू आर मोर लाइकली टू. सो या, देयर आर थ्री थिंग्स. 3 apps to uninstall this year. Zomato, Swiggy and Zepto. There are substitutes to it. Blinkit. तो Swiggy. जोमेटो का ही आ गया ना वो ब्लिंकिट. हाँ, but like Zepto की category में is Blinkit no. No, okay. So I don't think uninstalling would be a practical thing, but make something कि ये तीनों ऐप का एक्सेस तुम्हारे लिए बहुत लिमिटेड है. तो अगर तुम्हारे पास एंड्रॉइड आईफोन यूजर हो तो उसको हाइड कर दो, तो वो तुम्हारे सामने दिखे नहीं, उसके नोटिफिकेशंस बंद कर दो, बिकॉज दीज पीपल आर गेटिंग सो स्मार्ट एंड विद देयर नोटिफिकेशन मार्केटिंग Yeah. कि तुम्हें भूख नहीं भी लग रही है. लाइक तुम 5 बजे उठे हो कि उमेश ने बोला है कि सुबह सुबह वर्कआउट फिनिश करना है, तुम उठे 5 बजे वर्कआउट के लिए, अभी मोटिवेशन के लिए तुमने कुछ वीडियो लगाया या इंस्ट्रक्शन के लिए वीडियो लगाया, तुमने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिया नहीं बिकॉज तुम चिंदी हो, 125 रुपए पे नहीं कर सकते, तो वहां पे डाला जेप्टो ने ऐड कि हम, हमारा कैफे भी आ चुका है, तुम क्रॉसो ऑर्डर कर सकते हो हमारे, एंड यू लाइक जंड में जाए वर्कआउट, मैं क्रॉसो ऑर्डर कर रहा हूँ, एंड योर ब्रेन जस्ट नीड्स दैट स्टिमुलेंट. If you don't have if you don't have good relationship with food because you are trying, new things, so more likely you are going to fall into that trap and you end up ordering something. इससे बेहतर है उसको छुपा के रखो, हाइड करके रखो. It will be a better. Uninstall is not a practical solution. Right. और कुछ अगर स्क्रीन टाइम जैसा भी कुछ हो तो वो कोई नहीं यूज करता बाबा. स्क्रीन टाइम तो सबके पास है. हम खुद ही को गाली देके फिर व्हाट्स योर स्क्रीन टाइम बाय द? No, I'm saying restriction of the screen time for these apps. जैसे वो भी Instagram कर का सकते, होता है ना. हाँ, बट नहीं Not होता. practical. So what's your screen time I don't daily? know. Check a lot actually. Okay, But that has other apps also, na, not just like these apps. absolutely. पर उसमें टॉप ऐप कौन सा है? It's okay. नहीं, नेशन वांट्स टू नो. नुष्कास विद अनुष्का की होस्ट कितना घंटा इंस्टाग्राम पे स्पेंड कर, एंड Instagram, YouTube, that is only my go-to right now. nice. Mine is Zepto.
अब तो कोई नहीं सुन रहा आपकी इसके बाद तो। नहीं, तो नहीं, mine is also Instagram, yeah. And actually WhatsApp for me first, because वो या constantly reply होते हैं, but या then next comes Instagram. ट्रू। Three equipments to help us stay consistent with our healthy eating habits Oh, or interesting. healthy habits. Okay, I think air fryer would be one. If you want to limit your oil intake in Hmm. moderation, right, कि तुम्हें जितना चाहिए और लिमिटेड ऑयल में तुम्हें तुम्हारा खाना बनाना है, एयर फ्रायर वुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. तुम तुम्हारा फेवरेट फूड, क्रंची फूड एंजॉय कर सकते हो विद लिमिटेड ऑयल. टू विल बी अगेन किचन स्केल. प्लीज, 300 रुपये का आता है. एंड अगर तुम मेरी तरह हो प्रॉपर चिंदी, तो 14 दिन में अपना मेजरमेंट्स आईबॉल कर लो. अमेजोन पे रिटर्न भी कर सकते हो, बट प्लीज सिर्फ उस पर दूध वूध गिरा मत देना. Support it. And third is थोड़ा सा expensive, but I have invested in that. I've just purchased a walking desk. Hmm. Um, What is that? तो it's a treadmill, it's a walker, Oh, okay. जिसके ऊपर तुम लैपटॉप रख के अपना सेशंस कर सकते हो. Okay. तो मैं I spend like 8 hours talking to people, and my तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लूट्स को थोड़ा मूव कराना चाहिए ड्यूरिंग द सेशंस. आई डू 2 to 3 सेशंस ऑन ट्रेडमिल नाउ. 6 किलोमीटर की स्पीड पे तुम्हारा ऐसे 15,000 स्टेप निकल आएगा दिन का, But can you वाइल talk वर्किंग. and concentrate while also walking? स्पीड तुम्हें इतना नहीं रखना ना, यू फिगर आउट योर स्पीड. Okay. तुम बाहर भी वॉक कर रहे हो तो तुम 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर रहे हो स्पीड पे Yeah. वॉक. तो Hmm. तुम घर पे वही पेसिंग पे कर सकते हो. एंड सो दीज आर द 3 इक्विपमेंट्स दैट कैन ट्रेडमिल हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग. 11 दिन हुआ है मैं रोज 11-12-15 हज़ार स्टेप्स क्लॉक इन कर रहा हूँ. Nice. Good for the people with sitting jobs. एब्सोल्युटली. Hmm. एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव. मैं बिकॉज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर तुम तुम्हारी हेल्थ पे 35,000 रुपये नहीं खर्च सकते, फिर बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम भी है, पैसा भी है, तुम करना नहीं चाहते. Hmm. से The best way to stay consistent with anything. ओके, बेस्ट वे टू स्टे कंसिस्टेंट. आई थिंक ये जो हमें पूरा कॉन्वर्जेशन हुआ है, उसी का जेस्ट होगा. यू हैव टू Hmm. फाइंड योर वाई. It is a very philosophical and deep thing. You have to find your why. Otherwise तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किसके लिए क्या चीजें कर रहे हो. अदरवाइज यू आर जस्ट वेट लॉस कर रहे हैं बिकॉज लोग बोल रहे हैं. मैं काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ बिकॉज समाज में पैसा इज द थिंग. व्हाटएवर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट रैबलिंग अभी तो. बट I think the best way to stay consistent is find your why, एंड साथ में मेक एवरीथिंग सो कन्वीनियंट. कन्वीनियंस लीड्स टू कंसिस्टेंसी. इज Hmm. एज सिंपल एज दैट. अगर हम सबको सुबह उठ के स्क्रैच से टूथपेस्ट बनाना पड़ता, तो हमने ब्रश नहीं करना था. Right. इमेजिन. हम ब्रश क्यों करते हैं? बिकॉज टूथपेस्ट रेडी है. समटाइम्स वी आर जस्ट इन ऑटो पायलट. हम उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कब ब्रश करके बाहर निकल गया हमें पता भी नहीं होता है, बट वी मेक श्योर वी ब्रश आर टी बिकॉज इट्स सो कन्वीनियंट. Hmm. सो जो भी चीज़ तुम्हें चेंज करनी है तुम्हारी लाइफ में, मेक इट सो कन्वीनियंट. तुम्हें कल से प्रोटीन ऐड करना है तुम्हारी डाइट में, तो रात को लेग्यूम्स भिगो के रखो. प्रोटीन पाउडर ला के रखो अपने बैग के अंदर. प्रोटीन शेकर और डब्बे में प्रोटीन पाउडर डाल के रखो. ऑर्डर प्रोटीन बार्स एंड मेक इट अवेलेबल. तुम्हें कल अंडे खाने और तुम उस टाइम पे अंडे ऑर्डर करने जाओगे तो यू आर लेस लाइकली टू ईट अंडा. बट अगर तुमने रात से सोच के रखा है, अंडे ला के रखे हैं, तो यू आर मोर लाइकली टू हैव अंडा इन द ब्रेकफास्ट. तो मेक थिंग्स कन्वीनियंट टू स्टे कंसिस्टेंट. Convenient, accessible, and I think a little bit of planning with all of it will एब्सोल्युटली, help. एब्सोल्युटली. That's a great tip, and I think it's easier that ways. So I think yeah, काफी आज clarification which मेरे हर बार doubts होते थे with resolutions, and I think काफी लोग जो सुन रहे हैं उनके भी होते ही होंगे What are because you going to implement from this conversation? me, I think I will also start like एक तो resolution I can write only for myself after this. Which is, So now I have to think about it now. I will all sit right, down and think about it. you What have should two I be minutes, doing? go for it.
You are sitting down, think your brain is working. Go on. No, not so fast. I अच्छा, want गिवन अ चॉइस अभी 5 चीजें अगर तुझे तेरी लाइफ में चेंज करनी है, व्हाट आर यू गोइंग टू चेंज? एक तो eating तो definitely I don't eat that unhealthy but still जो भी है I have a sweet tooth I really want to reduce on that. I think उससे वही एक बेसिक चेंज से काफी चीजें will get back on track जो अभी थोड़ी हम्म डिस्टर्ब चल रही है. हम्म And after that, yes, I want to really work around on my podcast, and हम्म I want to do a lot of things with a lot of people. So I hope हम्म somewhere that kind of fits in, and I get going with that. हम्म So yeah, I think abhi to I can think of these two. What skill do you want to learn? Skill I want to learn. Actually, I'm already in a course and I'm learning. Which is? So it is called image consultancy and soft skills training. So I'm already in that learning bit. So abhi I don't want to take anything else on my plate. I want to finish that. So yes, that is also one goal that I want to really finish that and also start working on that. If you were to take up a performing art, what would you take on, like professionally? Dancing, I love dancing. Which genre? Um, I love doing. I mean, I love salsa. So if I get a chance, I would love to Hmm. do it. Hmm. Or if not, I think जो हम commercial like Bollywood वगैरह type का करते हैं general. I think I enjoy that a lot. Last question. Hmm. Um, if you were to invite a dream guest of yours on your podcast, Hmm. name one person from every industry, like a stand-up, Bollywood, and politics. Stand up समय रैना. और क्या कहा आपने? Bollywood and politics. Bollywood, so many people, but I think Ranveer Singh. Hmm. And from politics, I think Nirmala Sitaraman to understand. I'll join that podcast as well. Like we have two hosts today. Yes, to understand all about this GST and everything कि क्या हो रहा है. Nice. So Good. yes. Well done, Anushka, on your rapid fire. Yes. Good answers. I Good. like that. You've put me on the spotlight today. Yeah, there will be a reel. People get to know you better. Yeah, true. That's nice. So, yes, thank you so much for all those mind blowing clarifications, conversations around New Year resolutions. My And I pleasure. hope we now have a better clarity on the resolutions that I think all of us have been struggling around. And I like to all the listeners, let us know your views in the comments. What do you think about whatever we've spoken so far? और बाकी मजा आ रहा है तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो share it with your family and friends and also let them know about all of this. Subscribe and follow Dr. Umesh. His handles are mentioned in the description box below. Go check them out. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो and जिसने नहीं किया है और जिसने कर लिया है thank you so much. Please bell icon भी दबा दो so that you don't miss all of these crazy episodes coming forth. Thank you so much for tuning in. Follow me on Instagram at Miscast with Anushka. Until next time, stay curious, stay receptive. Thank you so much. Bye bye.